नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पुलिस फोर्स पर काम के दबाव में कमी की खातिर उनके काम के औकात में तब्दीली का ऐलान किया। रियासती असेंबली में एक बयान देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने DGP को हिदायत दी है कि वो उसके खदोखाल को खतियत दें। वो चाहते थे कि पुलिस वालों को 24 घंटे की बजाय 12 घंटे की ड्यूटी और हफ्ते में एक दिन की छुट्टी दी जाए। मजलिस के रुकन असेंबली मौजम खान ने आज रियासती असेंबली में मुकम्मल तालीम, सियाहत और सेहत के तसर्रुफ बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि रियासत में उर्दू मीडियम के स्कूल और कॉलेजेस का बहुत बुरा हाल है। कई सरकारी मदारिस में असातिज़ा और लेक्चरों की जायदादें मखलूआ हैं। इसी हालत की वजह से कई औलिया तलबा अपने बच्चों को खानगी और कारपोरेट तालीमी इदारों में भर्ती करवाने पर मजबूर हो रहे हैं। मौजम खान ने सरकारी दवाखानों की हालत का भी जिक्र किया और कहा कि कई सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स ही नहीं है। तिब्बी अमले की कंट्रैक्ट की बुनियाद पर भर्ती की गई है, जिन्हें फौरी मुस्तकिल किया जाए तो दवाखानों की हालत में सुधार आ सकता है। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि रियासत में तालीम और सेहत के शोबे पर सबसे कम बजट मुख्तस किया जाता है। सितम बाला सितम यह है कि बजट में मुख्तस करदा रकम भी हुकूमत जारी नहीं करती। उन्होंने सवाल किया कि इन दोनों अहम शोबों को नजरअंदाज करते हुए सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब किस तरह मुमकिन हो सकता है। Honorable Deputy Speaker, I rise to speak on the fourth batch of demands 2019-20 relating to school education, higher education, technical education, sports and youth services, and medical and health. Before I go into the specific of the department of the institution coming under these demands, I would like to bring out that steep budgetary cuts are imposed in full budget compared to vote on account for school, higher and technical education. This is something unacceptable since this is a crucial section of the human resource development. The budgetary allocation earmarked now are sufficient only for payment of salaries and allowances to teaching and non-teaching staff. There are no funds for additional classrooms, schools and colleges building basic infrastructure such as latrine, electricity, water supply, etc. Only rupees 5 crore for the construction and maintenance of the school buildings under the demand for school education for 2019-20. Budgetary allocation of rupees 8,209 crores has been made. The director of the school education gets 7,782 crores. And other wings and organization get the balance amount. The allocation for the salaries and allowances of the teaching and non-teaching staff is rupees 7,320. Sports activities in schools. Only rupees 1 crore is allocated, and it is hardly surprising that the enrollment in the government schools is falling and the number of these schools are closing down. Sir, higher education gets budgetary allocation of rupees 1,368 crores and technical education is provided rupees 323 crores. Bulk of the allocations for higher and technical education also go through the salaries and allowances of teaching and non-teaching staff of the junior degree and PG colleges, polytechnic professionals, colleges and universities. Hardly any funds are allotted for the construction and maintenance of the college buildings. Still, I feel that the budgetary allocation for the state universities do not fully meet their requirements. Usmania University, which is celebrated its 100 years recently, faces resource crunch
The government must come to the rescue of this prestigious university and ensure that the vacancies of faculty and non-teaching staff of the Osmania as well as other universities are filled up at the earliest. Curiously, 12 of the 15 state universities do not have vice chancellors, and officials are running the show as in charge vice chancellors. I request the government to fill up these vacancies of the vice chancellor at the earliest. Sir, on the request of Janab Akbaruddin Owaisi, rupees 5 crore each has been sanctioned by the state government for the degree colleges at Falaknuma and Chanchalguda. The funds were not released in 2017 and 18 and lapsed. Fresh orders should be issued to taken up these works. On 21st July 2018, the then Education Minister and Deputy Chief Minister Kadiyam Srihari visited the campus where primary and high schools, junior college, degree college, which have come over time, but due to some small issues, the works could not be started. Nevertheless, they are preparing a master plan for the project, and degree and junior college building should be completed before the beginning of the next academic year. The GHMC proposed to construct the football stadium at Falaknuma School Junior Degree Complex at a cost of rupees 6 crore, but the Education Department is not handed over the vacant land for the last 2 years. The then Education Minister and officials visited, but the works are not started. स्पीकर सर, आपको आपके जरिए मिनिस्टर साहब से ये मैं बताना चाह रहा हूं सर, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के जानिब से एक सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट चलाया जाता है और आपको ताजुब होगा ये सुने तो आप, फलकनुमा जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ लैब्स के वास्ते पैसे नहीं थे। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से 25 लाख रुपये फलकनुमा कॉलेज को दिए, 25 लाख रुपये गोलकुंडा कॉलेज को दिए। कॉलेज के अंदर, गोलकुंडे कॉलेज के अंदर भी डिग्री और जूनियर कॉलेज के अंदर भी लैब आने थे, ये अपनी जानिब से वहां पर दिए। यही एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से आज शहर हैदराबाद में और चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5 स्कूल चलाया जा रहा है और इस 5 स्कूल में आज हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। और वो स्कूल्स आपको मालूम होना चाहिए, नशीमन नगर में, रियासत नगर में, बाबा नगर में, नरकी फूल बाग में, अंबरपेट में और कई जगह सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से जो स्कूल चले जा रहे हैं, फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, फ्री यूनिफॉर्म दिए जा रहे हैं, फ्री किताबा दिए जा रहे हैं। और एक मालूम होना चाहिए साहब, आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब को बताना चाह रहा हूं, यही अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जब विकाराबाद में वहां के स्टूडेंट्स आकर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिस से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात करें और करके कहे जो कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स है उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है और वो कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स अपनी नौकरी छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो ये जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से विकाराबाद के अंदर 1.5 लाख रुपया वहां के लेक्चरर्स को दिया गया है। और क्या बोलते सो गोलकुंडे के अंदर 7,60,000 रुपए दिया गया और फलकनुमा के अंदर 3,20,000 रुपए कॉन्ट्रैक्ट लेक्चररों को अपनी जानिब से जाती तौर पे दिए हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि एक एजुकेशन ऐसी चीज है जो मुस्तकबिल के लिए, जो आज नौजवान नस्ल को आप और हम और अपनी गवर्नमेंट जब सपोर्ट नहीं करेगी तो कहां जाएंगे बच्चे। ये इनके एजुकेशन में रुकावट नहीं होने के लिए, इनकी एजुकेशन के अंदर कोई कठिनाइयां नहीं आने के लिए हमारी पार्टी की जानिब से जितना हो सका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी और हमारे हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इस मेहनत को आपको साथ देना चाहिए इस एजुकेशन के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। और एक चीज कहना चाह रहा हूं सर, मैं इन फलकनुमा जूनियर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर द स्टूडेंट्स आर सफरिंग। These colleges urgently require full-time faculty, computer labs and benches, etc. Government promised to in the house that they will take over 40 self-financial Urdu medium government junior and degree colleges in the state. Sir, in 1 year is over, but
This has not been done. और सर उस्मानिया हॉस्पिटल के बारे में आपके से कहना चाह रहा हूं सर, मैं आज उस्मानिया हॉस्पिटल एक हैदराबाद की शान है। वहां की इमारत एक हैदराबाद का ताज किया बोल सकते हैं आप। और उस उस्मानिया हॉस्पिटल से लाखों जो बीमार थ्रू आउट तेलंगाना में रहते हैं उस उस्मानिया हॉस्पिटल से फायदा उठा रहे हैं। और आपके और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पिछले 5 साल पहले ये वायदा करे थे इस हाउस के अंदर कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से दवाखाना उस्मानिया को रिनोवेट किया जाएगा। आज 5 साल हो चुके हैं, 1 रुपया भी आज तक एलोकेशन नहीं किया गया है। और आपको मालूम होना चाहिए इंटैक्ट जो सर्वे रिपोर्ट है, जो इंटैक्ट वाले आके जो सर्वे करे हैं उस सर्वे रिपोर्ट में इंटैक्ट वाले ये कहे हैं कि ये उस्मानिया दवाखाना आज जो मौजूद है और 200 साल तक रह सकता है उसको अगर रिनोवेट किया जाएगा। तो आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं ये आप काम करिए, काम करना बहुत जरूरी है। और एक चीज सर, आज शहर हैदराबाद के अंदर बुखार चल रहा है, अलग अलग बीमारियां चल रहे हैं, वायरल फीवर चल रहा है और thousands of patients visited the outpatient department of government hospitals in the city in the month of August, which is highest in 2019, showing that the incidence and the viral fevers and seasonal disease in the state has been high. Neelofer Children's Hospital had 37,633 patients and Petla Buruj Maternity Hospital had 11,000 patients, outpatients in the month of August according to the records. At Fever Hospital, where most patients comes, there are only 10 doctors working full time, and due to the heavy rush of the patients, most graduate doctors from the college have to be deployed. In the month of July, there were 29,383 outpatients in Fever Hospital, and the number rose to 43,725 patients in the month of August. The hospital, which has 330 beds. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज असेंबली में बताया कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। वो मजलिस के रुकन असेंबली अहमद पाशा खादरी और कांग्रेस के अरकान मल्लू भट्टी विक्रमाका और श्रीधर बाबू के सवालात का जवाब दे रहे थे। उन्हें बताया कि दूसरे इलाकों में मेट्रो का काम तेजी के साथ जारी है। पूरे मुल्क में हमारे पास जो काम हो रहा है वो कहीं भी नहीं हो रहा है। 66 किलोमीटर तक का काम दिसंबर के ख़त्म तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने मेट्रो ट्रेन पर जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत है 14,132 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और हुसूल अराजत के मुआवजे के तौर पर 3,000 करोड़ रुपए अदा किए गए।
उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की साबिका हुकूमत गन पार्क को हटाकर मेट्रो रेल को अलॉटमेंट की इजाज़त दे देती तो ये काम कभी का मुकम्मल हो जाता था। यहाँ बताना जरूरी होगा कि के.टी. रामाराव के वालिद के चंद्रशेखर राव ने, जबकि वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, सुल्तान बाजार से मेट्रो ट्रेन के गुजरने के मसले पर एहतजाज करते हुए इस काम में काफ़ी रुकावटें खड़ा की थी। इस रूट पर इस तनाज़े के सबब काम काफ़ी अरसे तक रुका रहा। मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट जो MGBS सिकंदराबाद के दरमियान है वो मुकम्मल होना बाकी है। रेल के काम का कुछ आगाज हुआ था, इससे पहले मार्किंग की गई थी, सर्वे किया गया था, रिपोर्ट तैयार हुई। इन कामों में कब आगाज होगा और कितना टाइम लगेगा, उसके लिए मिनिस्टर साहब से मैं जवाब चाहता हूं। जल्द से जल्द काम का आगाज होना बेहद जरूरी है। हमेशा एमएम पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी की गई। मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले में मिनिस्टर साहब की वजाहत के अंदाज में इसका जवाब दें। కాస్ట్ ఓవర్ రన్ గురించి మాట్లాడినారు అధ్యక్ష. మొదట 2012లో ఇంతకుముందు నేను విన్నవించాను అధ్యక్ష, DBFOT మోడల్. ఇంకొక మాట కూడా, పార్కును పడగొడుతూ మెట్రో రైలు నిర్మాణం చేయడానికి వీలు లేదు అని స్పష్టంగా చెప్పిన మాట వాస్తవం. ఎస్. తర్వాత సుల్తాన్ బజార్లోని ట్రేడర్స్ అందరూ వచ్చి ఆనాటి ఉద్యమ నాయకుడిగా కేసీఆర్ గారికి మొరపెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాట వాస్తవం. తప్పకుండా ప్రతిపాదనను పునఃపరిశీలించాలని చెప్పిన మాట వాస్తవం అధ్యక్ష. అదే మాదిరిగా ఓల్డ్ సిటీ విషయంలో కూడా ప్రజల మొరను ఆలకించి అక్కడ కూడా తప్పకుండా పరిశీలిస్తామని చెప్పిన మాట కూడా వాస్తవం అధ్యక్ష. ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, మన ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ 3 మార్గాలను కూడా ఒక ప్రజాస్వామిక ప్రభుత్వం అన్నప్పుడు తప్పకుండా ప్రజల ఆకాంక్షను గుర్తించి గౌరవించి అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అధ్యయనం చేశాం అధ్యక్ష. సెంట్రల్ రోడ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మనది కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, వాళ్ళకి అప్పచెప్పాం. అసెంబ్లీ ముందు మరి వద్దనుకుంటే గన్ పార్క్ పోకుండా తెలంగాణ అమరవీరుల స్తూపానికి నష్టం లేకుండా చేయాలి అంటే ప్రత్యామ్నాయాన్ని పరిశీలించమని కోరినాం అధ్యక్ష. వారు అసెంబ్లీ వెనకాల నుండి ఒక అలైన్మెంట్ను పరిశీలించారు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే కేవలం 7 మీటర్ల దూరం నుంచి, జూబ్లీ హాల్కి 7 మీటర్ల దూరం నుంచి ఆ అలైన్మెంట్ను ప్రతిపాదించారు అధ్యక్ష, పబ్లిక్ గార్డెన్స్ నుంచి. 7 మీటర్ల దూరం అంటే ప్రతిసారి మెట్రో రైలు పక్క నుంచి ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఆ ట్రెమర్స్, ఆ ప్రకంపనల వల్ల జూబ్లీ హాల్ బలహీనపడుతుంది అని ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది అధ్యక్ష. జూబ్లీ హాల్ మనందరికీ కూడా అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన హెరిటేజ్ స్ట్రక్చర్. అలాంటి స్ట్రక్చర్ మరి బలహీనపడడం కరెక్ట్ కాదనే ఉద్దేశంతో ఎట్ ద సేమ్ టైం గన్ పార్క్ కూడా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా, ఇక్కడ ఒక మాట కీలకంగా చెప్పాలి అధ్యక్ష, గతంలో ప్రతిపాదించిన, గత ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ప్రతిపాదించిన అలైన్మెంట్ అసెంబ్లీ ముందు గన్ పార్క్ను పడగొడుతూ ప్రతిపాదించారు అధ్యక్ష. యూ కెన్ చెక్ విత్ మెట్రో అథారిటీస్. మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, వినండి దయచేసి వినండి, సాధికారంగా అసెంబ్లీలో చెప్తున్నా, దాచినట్లేదు కదా. మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ అమరవీరుల స్తూపానికి ఎలాంటి నష్టం లేకుండా 20 మీటర్లు అవతలికి మెట్రో రైలుని తీసుకెళ్లి అసెంబ్లీ ముందుకే ఫైనల్గా జూబ్లీ హాల్కి నష్టం లేకుండా, గన్ పార్క్ నష్టం లేకుండా ఫైనల్ అలైన్మెంట్ చేసినాం అధ్యక్ష. రెండవది అధ్యక్ష, సుల్తాన్ బజార్. అక్కడ గోవింద్ రాటి గారు అని ఒక ఆయన ఉంటారు అధ్యక్ష, ఆ ట్రేడర్స్ అసోసియేషన్కి, ఆ జేఏసీకి నాయకత్వం వహించిన నాయకుడు. ఆయన వచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పినారు అధ్యక్ష, మాకు నష్టం జరుగుతుంది సార్, మా వ్యాపారాలు దెబ్బతింటాయన్నారు. 100 ఫీట్లు ఉండింది అధ్యక్ష మొదట ప్రతిపాదన, 100 ఫీట్లు రైట్ ఆఫ్ వే అన్నారు. మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వారితో చర్చించి దాన్ని 65 ఫీట్లకు కుదించి, సుల్తాన్ బజార్లో బడి చౌడీలో 80 ఫీట్లకు కుదించి వారందరినీ సంతృప్తిపరిచి వారి కోసం ఒక హాకింగ్ జోన్ కూడా కట్టించి వారి ఆమోదంతో అలైన్మెంట్ వారికి ఇంకో వేరే మార్గం కుదరదు. ఎందుకంటే ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ పోతుంది, కోటి విమెన్స్ కాలేజ్ పోతుంది, అవి రెండు కూడా చారిత్రకమైన ప్రాంతాలు కాబట్టి వాటిని తొలగించకూడదనే నిర్ణయం తీసుకొని అందరి ఆమోదంతో, జనామోదంతో మరి ఆ నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నాం. ఓల్డ్ సిటీ విషయం నేను చెప్పాను, ప్రభుత్వం కమిటెడ్ అధ్యక్ష, ఎగ్జిస్టింగ్ అలైన్మెంట్కే పోతున్నాం. మిత్రులకు ఒక అనుమానం ఉంది అధ్యక్ష, ఈ అలైన్మెంట్ స్టడీ చేసినప్పుడు ఏమైనా జాప్యం జరిగిందా, ఆ జాప్యం వల్ల పేపర్లో రాసినట్టు ఏమైనా కాస్ట్ ఓవర్ రన్ ఉందా అని అనుమానం వారికి ఉంది అధ్యక్ష. అలాంటిది ఏమీ జరగలేదు. ఇంతకుముందే నేను చెప్పినట్టు బెంగళూరు కంటే, ఢిల్లీ కంటే, చెన్నై కంటే అవి 9 సంవత్సరాలు పడితే మనం 6 సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేసుకున్నాం. మీకు ఎలాంటి అనుమానం, అపోహలు అవసరం లేదు. విజయవంతంగా మెట్రో నడుస్తుంది. దయచేసి మీ అనుమానాలు తొలగించుకొని ఈ అభినందించండి చెప్పి కూడా కొడతా ఉన్నా అధ్యక్ష. डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस क्राइम में मुलविस अफराद के खिलाफ PD एक्ट लगाया जाएगा, नीज उनकी जायदादें भी खर्च की जाएंगी। वो ह्यूमन ट्रैफिक के खिलाफ रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मुतासरीन के साथ जो पहले ही से ज़हनी दबाव और नफसियाती मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, अच्छा रवैया अख्तियार करना चाहिए। उनके साथ मुजरिम जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। हमदर्दी, दिलासा और हिम्मत दिलाते हुए उनकी ज़हनी अजियत को कम किया जा सकता है। इंस्पेक्टर जनरल विमेंस एंड सेफ्टी स्वाति लाकड़ा ने कहा कि पुलिस को नई टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस अफराद का पता चलाना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में रियासत भर के ज़ायद 100 पुलिस अहदेदार और NGOs के नुमाइंदे शरीक थे। ज्वाइंट डायरेक्टर
मौके में बहबूदी खवातीन व अतफाल KRS लक्ष्मी देवी और दूसरों ने खिताब किया। रियासत के कई इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिन से बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया है। शहर में कल रात धुआंधार बारिश हुई। आज दोपहर और शाम में भी शदीद बारिश से कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाने की इत्तलात मिली हैं। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक भी जाम देखी गई। जिसमसी का अमला मंदिर से गायब था, जिससे लोगों को सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा। जिन सड़कों का पैचवर्क का काम किया गया था वो खराब हो गई हैं, जो इस बात का सबूत है कि बल्दिया ने सड़कों की मरम्मत का इंतहाई नाक़स काम अंजाम दिया है। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में मौके में समकियात की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने तालाबों और नदियों में मछली छोड़ने का काम 30 सितंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि हुकूमत इस साल रियासत के 756 तालाबों और नदियों में 80 करोड़ 57 लाख मछलियाँ छोड़ने का निशाना रखती है। उन्होंने इस काम में मच्छरों को भी शामिल करने का मशवरा दिया। आंध्र प्रदेश एक्साइज डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने विशाखापट्टनम के मौजे पुदीरू में एक कार से 414 किलो गांजा जब्त किया और 2 अफराद मनीराज और विमल राजू को हिरासत में ले लिया। ये दोनों, जिनका ताल्लुक तमिलनाडु से विशाखापट्टनम से गांजा मुंतकिल कर रहे थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज बेंगलुरु के HAL के एयरपोर्ट से हिंदुस्तानी फिजाइया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी। वो इस तैयारे में सवार होने वाले मुल्क के पहले वज़ीर दिफा हैं। वज़ीर दिफा 30 मिनट के सफर के बाद वापस हुए। वो 2 सीटों वाले इस फाइटर तैयारे के कॉकपिट में पायलट के अगबी हिस्से में बैठे थे। फिजाइया के यूनिफॉर्म में मलबूस राजनाथ सिंह की दिफाई अहदेदारों ने एयरक्राफ्ट में सवार होने में मदद की। तेजस या 4th जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो पूरी तरह से ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड ये एयरक्राफ्ट है तेजस। और पहली बार इस तेजस में बैठने का मुझे अवसर मिला और मुझे फ्लाई करने का काम जिस कैप्टन ने किया, कैप्टन नरोदेश्वर तिवारी, वहाँ हमारे बगल में खड़े थे और बराबर बीच में ऊपर मैं इनसे बातचीत भी करता रहा। और इस फ्लाइंग के संबंध में कहना चाहूँगा, फ्लाइंग वॉज वेरी स्मूथ एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर मी एंड आई वॉज इंजॉइंग। और मैं ये कहना चाहूँगा कुछ उसके करतब भी मैंने ऊपर देखे और मैं कह सकता हूँ कि हमें अपने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर, HAL के ऊपर, आडा एरोनॉटिक डेवलपमेंट जो हमारी एजेंसी है, इसने इसका डिज़ाइन बनाया है, और HAL, DRDO
यह सब सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं सबको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आज तेजस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों से भी हो रही है और मैं समझता हूं कि हम लोग अब इस स्थिति में भी पहुंच गए हैं कि दुनिया को भी हम फाइटर प्लेन्स और बहुत सारे आर्म्स और एम्यूनिशंस भी अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे एक्सपोर्ट करने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। बस सब मिला कर भी मुझे कहना हो तो मैं कहना चाहूंगा कि आई आर वेरी थ्रिल्ड। मैं बहुत ही अपने को मेरे जिंदगी का एक विशेष अनुभव था और मैं अपने फाइटर प्लेन के जितने भी पायलट्स हैं, सचमुच उनकी बहादुरी, उनके शौर्य और उनके पराक्रम की मैं तारीफ करना चाहता हूं और पूरी अपनी जितनी फोर्स है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन नेवी हो, सचमुच नाज है मुझे अपनी फोर्स के ऊपर सर। आप पहले और अपने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर। उन्होंने तेजस को चुना है सर, पहले आप ऐसे रक्षा मंत्री, आपने तेजस को क्यों चुना? हाँ, मुझे बताया गया कि मैं पहला डिफेंस मिनिस्टर हूं जो कि पहली बार इस तेजस फाइटर प्लेन पर बैठा है, लेकिन भारत का पहले मंत्री भी है। सर एक मिनट वो कंप्लीट कर लें सर। आपने तेजस को क्यों चुना सर? क्योंकि बाकी सब लोगों ने सुखोई और मिग उड़ाया, आपने तेजस को हमारे स्वदेशी लड़ाकों नहीं, ये हमारा स्वदेशी था, इंडिजिनस था। इस कारण जो है मैंने क्यूरियोसिटी थी हमारी कि मैं एक बार तेजस में बैठूं और मैं ये अनुभव करूं कि वास्तव में तेजस की फ्लाइंग कैसी होती है और किन परिस्थितियों में हमारे जो पायलट्स होते हैं उनको इस प्रकार के फाइटर प्लेन्स को फ्लाई करना पड़ता है। इस कारण मैं बैठा और यदि कुछ और जानकारी देनी होगी तो कैप्टन नरवेश्वर तिवारी आपको जानकारी दे सकते हैं। ऑनरेबल रक्षा मंत्री वाज फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट इन द एयर and he liked it. He was also flying. Yes, What yes. was the G like? Force like? Did you know? We went all the way up to about 2.5 G. But I was showing him more of the avionics and sophisticated system that we have on board. Like the laser designation pod, you can pick up targets even from 20-25 kilometers. मैंने सर को दिखाया क्यूरियोसिटी थी। He was very happy with the flying quality, the smoothness, and the controls and the way the aircraft was flying. Like we went close to Mach 1, the speed of sound, but he couldn't make out. I had to tell him that this is the speed now. Raksha Mantri controlled the aircraft for some time and he flown the aircraft for some time. सर आप बताएं सर, आप जब कंट्रोल किया एयरक्राफ्ट को तो आपको क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जैसे कैप्टन नरवेश्वर तिवारी बतलाते रहे वैसा वैसा मैं करता रहा। लड़ाकू विमान को को पायलट करना बहुत ही साहसिक काम होता है। तिवारी साहब, आप भी अगर शेयर कर सके तो किस तरह का अनुभव था? रोमांच तो हमने देखा सर के चेहरे पर था, लेकिन बहुत सहज था इनके लिए। रक्षा मंत्री साथ में थे आपके, तो आपके No, it is a great honor for me and for him. He is the first defense minister to fly on Tejas. तो हमारे लिए एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा है और ऑनर भी है कि हमारे रक्षा मंत्री हमारे साथ आके। मौके में मौसमियात की तरफ से आइंदा 2 दिन शदीद बारिश होने की पेशकशी के बाद मुंबई और उसके अतराफ के इलाकों में स्कूलों और कॉलेजों को 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ और दूसरे इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। मुंबई पुलिस ने भी शहरियों को वार्निंग दी है कि वो सिर्फ हंगामी सूरत में घरों से बाहर निकलें, क्योंकि बारिश के सबब कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो जाने का अंदेशा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।